یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ خبریں سنیے۔ شفاف اور جواب دہ حکمرانی کے لیے آڈٹ برادری کا رول اہم، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا جموں میں آڈٹ ویک کی اختتامی تقریب سے خطاب۔ سرحد پار سے بھارت میں داخل ہونے والے کچھ ملیٹنٹ ریٹائرڈ پاکستانی فوجی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل اپیندر دویدی کا دعویٰ، علاقے میں 20 سے 25 ملیٹنٹ ابھی بھی سرگرم۔ عام لوگوں کی شکایات اور مسائل فوری طور پر نمٹانے کی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی ملازمین کو تاکید، اور بجلی صارفین کو اپنے بقایا جات جلد از جلد ادا کرنے کی محکمے نے دی وارننگ۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شفاف اور جواب دہ حکمرانی کے لیے آڈٹ برادری کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتہ بھر جاری آڈٹ ڈے کی تقریبات ہمیں اس اہم کردار پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں جو آڈٹ کمیونٹی اچھی حکمرانی میں حصہ ڈالنے اور ہماری قوم کے طرز حکمرانی کی تشکیل میں ادا کرتی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ عوامی آڈٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ترقی کی آخری قطار میں کھڑے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے مقصد کے لیے ہر روپیہ اچھی طرح سے خرچ کیا جائے۔ ان باتوں کا اظہار ایل جی نے آج کنونشن سینٹر جموں میں آڈٹ ویک کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی زندگی میں شفافیت، جوابدہی اور ایمانداری لانے کے لیے قائم کیے گئے ابتدائی اداروں میں سے ایک انسٹیٹیوٹ آف کنٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل آف انڈیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے سرکاری محکموں پر زور دیا کہ وہ کوتاہیوں پر فوری ایکشن لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اصلاحات کے دور میں آڈٹ برادری کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ آڈٹ رپورٹ اور ضروری حقائق فوری طور پر پیش کرے تاکہ پالیسیوں اور پروگراموں کی تشخیص سے متعلق کارروائی بلا تاخیر ہو سکے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ آڈٹ کے مشاہدے اور سفارش کو ایک رہنما کے طور پر دیکھا جانا چاہیے تاکہ سرکاری خزانے کی ایک ایک پائی عام آدمی کے معیار زندگی کو بہتر بنا سکے۔ انہوں نے کہا کہ تمام افسران کو آڈٹ رپورٹس اور آڈٹ مشاہدات کو اپنے کام کی تنقید کے طور پر دیکھنے کی اپنی سوچ بدلنی چاہیے۔ تقریب میں لیفٹیننٹ گورنر نے ای گورننس اور ڈیجیٹل رسائی کی وجہ سے انتظامی اور کاروباری عمل میں ہونے والی اہم تبدیلیوں کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تبدیلی آڈٹ کمیونٹی کے لیے نئے چیلنجز اور مواقع لے کر آئی ہے کہ وہ آئی ٹی سسٹم کی حفاظت پر خصوصی توجہ دے اور پنچایت کی سطح پر اداروں اور نوجوانوں کو شراکت دار بنائیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے گزشتہ چند برسوں میں جموں کشمیر کے آڈٹ اور اکاؤنٹس دفتر کی کلیدی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اصلاحی اقدامات نہ صرف یوٹی انتظامیہ کے محکموں کو فائدہ پہنچاتے ہیں بلکہ ہمارے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے عام شہریوں کی زندگیوں پر بھی براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے راجوری میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے دوران قوم کی خدمت میں عظیم قربانی دینے والے بھارتی فوج کے بہادروں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ میں اپنی فوج کے ان بہادروں کی شہادت کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی بہادری اور قربانی کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جموں میں ایک تعزیتی تقریب پر کیپٹن شبھم گپتا، کیپٹن ایم وی پرانچل، لاس نائک سنجے بشت اور پیرا ٹروپر سچن لاورک کے جسد خاکی پر پھول چڑھائے جنہوں نے بدھ کو ایک انکاؤنٹر کے دوران ملیٹنٹوں سے لڑتے ہوئے ملک کی خاطر قربانیاں دی۔ اس موقع پر جنرل آفیسرنگ کمانڈنگ ان چیف ناردرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل اپیندر دویدی، جموں کشمیر پولیس کے ڈائریکٹر جنرل آر آر سوین اور دیگر سینئر فوجی اور پولیس افسران نے بھی ان بہادروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارتی فوج کے اہلکار 22 نومبر کو راجوری ضلع کے کالا کوٹ جنگلات میں ملیٹنٹوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ اس سے پہلے رومیو فورسز راجوری کے جی او سی اور فوج کے کئی اعلیٰ عہدیداروں نے راجوری میں ان کی میت کو خراج عقیدت پیش کیا اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ راجوری میں ان فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد 4 فوجی جوانوں کی لاشوں کو جموں لایا گیا جہاں ان کی میتوں پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی، جبکہ پونچھ کے حوالدار عبد المجید کی میت کو پونچھ لے جایا گیا۔
इस तसादुम के दौरान अफगानिस्तान में तरबियत याफ्ता लश्कर तैयबा के एक आला कमांडर समेत 2 मिलिटेंटों को कल एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। दरियासना शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने कहा है कि सरहद पार से भारत में दाखिल होने वाले कुछ दहशतगर्द रिटायर्ड पाकिस्तानी फौजी हैं। वो राजौरी तसादुम में जान की बाजी हारने वाले 2 फौजी कैप्टन समेत 5 फौजियों को आखिरी खराज अकीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा कि फौजियों ने 2 खतरनाक मिलिटेंटों को भी मार गिराया और कहा कि इन मिलिटेंटों को मारने से दहशतगर्दी के माहौलियाती निजाम और पाकिस्तान को बड़ा दचका लगा है। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि तकरीबन 20 से 25 मिलिटेंट अभी भी इलाके में सरगर्म हैं और एतमाद जाहिर किया कि सिक्योरिटी फोर्सेज को मकामी लोगों की मदद से 1 साल के अरसे में हालात पर काबू पाने में कामयाबी हासिल हो गई। उन्होंने मजीद कहा कि मारे गए दहशतगर्द डंगरी, कंडी और राजौरी में मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे और उनका खात्मा ऑपरेशन में शामिल मुश्तरका फोर्सेस की टीम की अव्वलीन तरजीह थी। कालाकोट जंगलात में मारे गए मिलिटेंटों के बाद फौज ने इलाके से काफी तादाद में हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। कालाकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 14 सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर सुमित पटनायक ने कहा कि फौज ने 2 AK-56 राइफलों को 10 मैगजीनों के साथ बरामद किया है। इसके अलावा गोलियां और कुछ दीगर सामान भी बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान 5 बहादुर जवानों ने कुर्बानी पेश की, जबकि उन्होंने ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा के एक आला कमांडर समेत 2 मिलिटेंटों को मार गिराया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन का फर्ज है कि वो आम लोगों की शिकायत और मसाइल का फौरी जवाब दें। उन्होंने कहा कि नौजवान अफसरों को ऐसे इख्तराई इक़दामात करने चाहिए जो मुख्तसर और तवील मुद्दत में शहरियों और मुल्क के लिए फायदेमंद हों। वो हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में खुसूसी फाउंडेशन कोर्स से गुजरने वाले अफसर ट्रेनीज के एक ग्रुप से खिताब कर रही थी, जिन्होंने आज राष्ट्रपति भवन में उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुल्क की जामे तरक्की के हदफ को हासिल करना सरकारी मुलाजमीन का फर्ज है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान के शहरी मुल्क के तरक्की के सफर में सरगर्म हिस्सेदार हैं और उनसे मुख्तलिफ प्रोग्रामों के मकासद को हासिल करने के लिए जन भागीदारी को फरोग देने की अपील की है। मुल्क की कसीर जोहती तरक्की में सरकारी मुलाजमीन के किरदार की तारीफ करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि वो कौम के इत्तेहाद और यकजहती को मजबूत करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि आज मुल्क जिस तब्दीली से गुजर रहा है वो सरकारी मुलाजमीन के अज़्म के बगैर मुमकिन नहीं था। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात समंदर से लेकर खला तक फैले हुए हैं, जिसमें तमाम मुमकिना इलाकों का इहाता किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इन शोबों में दिफा और सलामती, साइबर और अहम टेक्नोलॉजी, तिजारती और इक्तसादी, साइंस और टेक्नोलॉजी और अवाम से अवाम के ताल्लुकात शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर आज अमली तौर पर ऑस्ट्रेलिया इंडिया लीडरशिप डायलॉग के 6ठे एडिशन से खिताब कर रहे थे। बिजली सार्फिन से जेर इल्तवा बकायाजात के हुसूल में अपनी कोशिश जारी रखते हुए कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू इकट्ठा किया है। इसी दौरान बिजली चोरी की जांच के लिए कॉरपोरेशन की टीमों ने खिलाफ वर्जी करने वाले सार्फिन पर तकरीबन 8 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। तर्जुमान के मुताबिक 1048 घरेलू, तिजारती और सन्नती कनेक्शन भी तवानाई के वाजिबात की अदम अदायगी पर मुनक़ता किए गए, जो 3 माह से जायद अरसे से जेर इल्तवा थे। इसमें 731 घरेलू, 266 कमर्शियल और 31 सनती सार्फिन शामिल हैं। तर्जुमान ने कहा कि बिजली की चोरी और नादिहिंदा सार्फिन के खिलाफ बिलतरतीब मुआयना और मुनक़ता मुहिम कॉरपोरेशन को कटौती के शेड्यूल पर कायम रहने में मदद फराहम करेगी। KPDCL ने तमाम घरेलू, तिजारती और सन्नती सार्फिन को मशवरा दिया कि वो अपने जेर इल्तवा बिजली फीस के वाजिबात अदा करें या मुस्तकिल तौर पर बिजली मुनक़ता किए जाने के लिए तैयार रहें।
ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट अनंतनाग ने जिला भर में अपनी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर वनपू हाईवे, पाजलपोरा बिजबिहाड़ा हाईवे, जिरपारा मार्केट और बाद में बिजबिहाड़ा पहलगाम रोड पर मुतअद्दिदन नाके लगाए, जिस दौरान मजमूई तौर पर 160 गाड़ियों की चेकिंग की गई। 40 चालान मौके पर ही जारी किए गए। आज गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर मुगलों के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने अपने पैरोकारों को अपनी जान की परवाह न करते हुए कमजोरों का तहफ्फुज करने का दर्ज दिया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुरु तेग बहादुर को उनके शहीदी दिवस पर खराज अकीदत पेश किया है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने इंसानी अक़दार और हुकूक के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी तालीमात हमें खिदमत खलक और इत्तेहाद को फरोग देने की तरगीब देती हैं। भारत की जूनियर बॉक्सिंग टीम के खिलाड़ी आज येरेवान आर्मेनिया में आईबीए जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। ये खेल अगले महीने की 4 तारीख को मुनक़द होंगे और इसमें मुख्तलिफ वजन के 26 जुमरों के मुकाबलों में 58 मुल्कों के 448 नौजवान मुक्केबाजों की शिरकत देखने में आएगी। भारतीय टीम में एशियाई चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल करने वाले लड़के और लड़कियां शामिल हैं। अफगानिस्तान के सफारतखाने ने नई दिल्ली में अपने सफारती मिशन को मुस्तकिल तौर से बंद किए जाने का ऐलान किया है। सफारतखाने ने एक बयान में पुख्ता यकीन का इजहार किया है कि मिशन को बंद करने और मिशन की तहवील से मुतल्लिक अथॉरिटी की मुंतकिली का फैसला अफगानिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। सफारतखाने ने गुज़श्ता 22 साल से अफगानिस्तान की मदद और हिमायत करने के लिए भारत के अवाम के तय तशक्कुर का इजहार किया है। और राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के लिए कल वोट डाले जाएंगे और इस सिलसिले में सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यहां 199 असेंबली हलकों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। रियासत में कुल 200 असेंबली सीटें हैं। अलबत्ता एक उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से एक सीट पर वोटिंग मुअत्तल कर दी गई है। कल चुनाव मुहिम खत्म हो जाने के बाद अब सभी की निगाहें इंतखाबी कमीशन पर हैं। आज से कमीशन की पोलिंग टीमें पोलिंग से मुतल्लिक सामान लेकर अपने अपने बूथों के लिए रवाना हुई। रियासत में कुल 51,507 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं और 2,75,000 पोलिंग अमला तैनात किया गया है। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत -5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।